Everyone, welcome back to our channel Vision Civil Service. My name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. So I welcome you all to our daily current affairs analysis, okay, from our Hindu and other newspaper. Okay, so as you all know, Vision Civil Service has been in this industry for a long time now, and we have provided coaching to a lot of students who have cleared the exams as well. We have free to demo classes available for the students, plus we have bilingual courses in English and Hindi, so आपको कोई भी problem नहीं आएगी in future for your understanding of anything. Plus we have online and offline batches available for the students. We also have weekend batches for the students so that they can who are working, they can understand things well and you can attend the all classes and complete their syllabus at time. So let's begin with our session today. So in today's session, we'll be discussing about the important news articles of 7th October 2024. In this, we'll be covering the table of contents. That is, first we'll be discussing the prelim facts related to inscriptions at the 3 Tamil Nadu temples copied onto paper by the ASI. Next will be excavations commerce at the Hodalpur megalithic burial site in Hanur Taluk. And next we have international relation GS paper 2 का topic, that is Muizu to meet Modi, request India support over looming economic crisis, that is Maldives के जो leader हैं. Okay, next we'll be discussing about the science and technology GS paper 3 का scientists are working on a way to detect cancer with sound waves. Okay, and we'll be discussing community news, that is Docover community. And last but not the least, international relations का topic GS paper 2 के editorial analysis के through we'll discuss that the 3-tier war in West Asia with non-end game. Okay, so let's start. Okay, so our first topic is the inscription at 3 Tamil Nadu temples copied onto paper by the ASI. So basically this talks about that the ASI, that is the what is ASI? Archaeological Survey of India. ठीक है, तो they have founded something that they have copied on paper or from 3 Tamil Nadu temples in Thirukudrundi, Tirunelveli. ठीक है, ये जगह का नाम है. एंड फ्रॉम देयर दे हैव एक्सट्रैक्टेड समथिंग इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, एंड दे हैव कॉपीड दोज इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द 3 temples. And these inscriptions that have been discovered while they were doing renovation, मतलब वहाँ renovation का काम चल रहा था, and then they discovered these inscriptions and it provided एक outer look, एक insight provide करता है into donation and practices of the Pandya and the Vijayanagar period. तो पांड्या पीरियड एंड द विजयनगर पीरियड के टाइम पे क्या डोनेशन, क्या प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, उस चीज़ को ये इंसाइट देता है, उस चीज़ को आउटलुक को दर्शाते हैं ये इंस्क्रिप्शन. एंड ऑल्सो एडिंग वैल्यू टू आर इंडियन कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, इंडिया क्या क्या कल्चर रहा है, क्या हेरिटेज है हमारे कंट्री का, एंड अबाउट अ हिस्टोरिकल थिंग्स, उसको दर्शाता है इंस्क्रिप्शन. When we inscription that was found in the Nambiya Rayar, Thirumuli Nambi and Anisulwar temple in the Thirukurundu. ठीक है, तो इनके नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं. ओके, सबका अलग होता है नेम प्रोनाउंसिएशन का. तो दीज इंस्क्रिप्शन वर फाउंड एट दीज 3 places. ओके, एंड a Pandya period inscription in Vazirtuhu in and Tamil Nadu mentions कि वहाँ पे डोनेशन हुई थी 50 शीप की फॉर घी टू लाइट परपेचुअल लैम्प्स इन अनिस्वार टेम्पल. ठीक है, मतलब 50 शीप का डोनेशन किया गया था जिससे कि घी एक्सट्रैक्ट कर सके, और वहाँ पे जो लैम्प होते हैं, वहाँ पे जो दिए जलाए जाते हैं अनिस्वार टेम्पल में, उसके लिए वो डोनेशन करी गई थी. तो हमें ये इंस्क्रिप्शन से पता लगता है. ठीक है, वो कौन से पीरियड की इंस्क्रिप्शन थी, पांड्या पीरियड की इंस्क्रिप्शन थी. जो एक और इंस्क्रिप्शन मिली है एट नाम्बी रेयर टेम्पल, वो रिकॉर्ड दिखाता है कि टैक्स फ्री लैंड डोनेशन हुआ करती थी. मतलब इंस्क्रिप्शन में एक रिकॉर्ड दर्शाया गया है कि वहाँ पे टैक्स फ्री लैंड डोनेशन प्रोवाइड करी जाती थी ड्यूरिंग द विजयनगर रेन स्पेसिफाइड इन लैंड बाउंड्रीज. मतलब वो दिखाता है कि उस टाइम पे भी हमारे यहाँ क्या थी, लैंड बाउंड्रीज थी, एंड लैंड के लिए हम टैक्स पे करते थे. ठीक है, लैंड डोनेशंस होती थी. ओके,
When we move further with this, the inscription offer insight into temple rituals. inscription में और क्या क्या देखने को मिला है हमें कि टेम्पल में क्या क्या रिचुअल्स होते थे, क्या क्या उनके जो तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कैसे पूजा कराई जाती है, एंड डिफरेंट थिंग्स अबाउट द टेम्पल, वो सब भी बताया गया है उन इंस्क्रिप्शन में. एंड ऑल्सो अबाउट द डोनेशंस, किस टाइप से डोनेशंस करी जाती थी, क्या डोनेशन होती थी उस टाइम पे. ठीक है, ओके. एंड ऑल्सो द सोशो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम, कि वहाँ पे उस मोमेंट पे क्या प्रैक्टिसेस, क्या सोसाइटी के क्या नॉर्म्स थे, क्या कल्चर थे और क्या प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे, वो भी शो करती है इंस्क्रिप्शन. अब कुछ इंस्क्रिप्शंस क्या थी, थोड़ी डैमेज थी. ठीक है, अब इतने टाइम पुरानी है, प्लस इट वाज फाउंड ड्यूरिंग द रेनोवेशन पीरियड, तो कुछ जो इंस्क्रिप्शन थी दे वर पार्शली डैमेज. ठीक है, जिसकी वजह से कुछ उसमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम भी आ रही थी कि क्या डोनर्स थे, क्या रेंज के बारे में, मतलब किस पीरियड को दर्शाता है, कुछ ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई गई है. एंड द इंस्क्रिप्शन वो कॉपीड इनटू मैप्लिथो पेपर. एक पेपर होता है जिस पे हम इंस्क्रिप्शंस को इजीली कॉपी कर पाते हैं, दैट इज़ द मैप्लिथो पेपर. एंड इट वाज डन बाय एस्टम्पेज मेथड. एक मेथड होता है एस्टम्पेज मेथड, उसके थ्रू उस इंस्क्रिप्शन को मैप्लिथो पेपर पे कॉपी करा गया है. ठीक है, बाय ASI आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाला मुरुगन ने. ठीक है, तो इसके लिए अलग से लोग असिस्ट किए जाते हैं. कोई भी ऐसे आके उसको काम नहीं कर सकता. आर्कियोलॉजी के काम बहुत बारीकी से करे जाते हैं, बहुत केयरफुली करे जाते हैं, क्योंकि एक भी अगर आप चीज़ को डैमेज कर दो तो पूरे एविडेंसेस बेकार हो जाते हैं. ओके, and these studies what do they contribute, they contribute to that further studies, कि हम आर्कियोलॉजी में और क्या क्या इन चीज़ों से हम क्या स्टडीज़ कर सकते हैं, इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम क्या क्या और नया जान सकते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में. ओके, तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी हमें आगे हम फ्यूचर फाइंडिंग्स, रिपोर्ट्स, इन सब के बारे में. ठीक है, अब हमारा एक PYQ क्वेश्चन है. With reference to चौसठ योगिनी टेम्पल situated near मोरेना, consider the following statement. ठीक है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आते रहे हैं हमारे PYQs में. प्लस वी हैव रिलेटेड टू डांस आर्ट फॉर्म्स डन इन टेम्पल, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, प्रैक्टिसेस फॉलोड इन टेम्पल, डिफरेंट टेम्पल्स. ठीक है, वो सब. पहला है, इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपगटा डायनेस्टी. It is the only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnava cult in the region, and its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ओनली 1 and 4, कि सबसे पहला इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपगटा डायनेस्टी. तो ये डायनेस्टी थी, इसके पीरियड पे ये टेम्पल 64 योगिनी टेम्पल बनाया गया. एंड सेकेंडली इसका जो डिज़ाइन है, ऐसा बिलीव है कि जो इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसकी इंस्पिरेशन उस टेम्पल से ली गई है. तो प्लीज़ डू सी व्हाट द टेम्पल इज़ ऑल अबाउट, उसके आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए. डू रीड इट अबाउट इट. नेक्स्ट हमारा प्रीलिम फैक्ट है, एक्सकवेशंस कॉमन्स एट दोधालपुर मेगालिथिक ब्यूरियल साइट इन द हन्नूर तालुक. तो एक ये ब्यूरियल साइट को एक्सकवेशंस करी गई हैं उसके थ्रू, जिससे हमारी कुछ स्टडीज़ में कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की टीम ने एक्सकवेटिंग मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स को, मतलब जो पुराने मेगालिथिक ब्यूरियल क्या होता है, जिसमें दबाते थे लोगों को, दफनाया जाता था, उन साइट्स को जो मेगालिथिक पीरियड को जस्टिफाई करती हैं इन चमारजंगल डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या करा है, स्टडी करा है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने. ठीक है, एंड टू स्टडी द आयरन एज के बारे में. आयरन एज के बारे में जो मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स हैं वो क्या दिखाती हैं हमें, आयरन एज कल्चर के बारे में, उसके लिए ये एक्सकवेशंस करी गई हैं. ठीक है, एंड प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि वो जो रीजन है, ठीक है, उसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है, किस लिए वो जो हिस्ट्री में वो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट रही होगी, वो जगह इम्पोर्टेंट रही होगी, उसके लिए करा गया है. एंड ऑल्सो फॉर द फील्ड ट्रेनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि जब आप आर्कियोलॉजी सीख रहे हो तो आपको फील्ड पे जाके काम करना भी तो आना चाहिए ना, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स व्हाट द एम इज़ ऑल अबाउट.
अब हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो साइट है उसके बारे में, तो जो साइट है इट्स लोकेटेड इन अ स्मॉल वैली फॉर्म बाय द मेल महादेश्वरा हिल रेंजेस। ठीक है, तो आपको ये बताना है महादेश्वरा हिल रेंजेस कहाँ है, कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद जो ब्यूरियल साइट है जिसका उन्होंने बेसिकली एक्सकवेशन किया है वो हमें मेगालिथिक पीरियड के बारे में बताती है। ठीक है, जिसको हम आयरन एज भी बोलते हैं। तो इससे हमारा क्या काम हो जाता है कि हम आयरन एज के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं और क्या जान सकते हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ब्यूरियल साइट से हमें ऐसे क्या एविडेंसेस मिलते हैं जो जस्टिफाई करेंगे कि हाँ इस एज में ये चीज़ें होती थी। एंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट एज इज 1200 BC to 300 CE। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, द ब्यूरियल्स आर कैरेक्टराइज बाय सर्कल्स मेड ऑफ लार्ज बोल्डर्स। बहुत बड़े बड़े पत्थर या बोल्डर्स हैं, ठीक है, और वो सर्कल्स में बनाए गए हैं बरियल्स को। ठीक है, और ये जस्टिफाई करते हैं कि मेगालिथिक कल्चर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो उनको एविडेंसेस मिले हैं लार्ज बोल्डर सर्कल की शेप में, तो ये सब क्या दिखा रहे हैं कि मेगालिथिक का कल्चर होता था। और साइट को डिस्कवर किसने किया था, श्री कृष्णमूर्ति ऑफ द ASI डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में 1961 में उन्होंने साइट को पहली बार डिस्कवर किया था। और इसमें क्या है 1000 ब्यूरियल्स मिले हैं उनको, एंड मैनी हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ तो देखो एविडेंट हो जाते हैं आँखों से, कुछ चीज़ें गुम हो जाती हैं ड्यू टू डेवलपमेंट। हम अब जैसे एग्रीकल्चर हो रहा है उस एरिया में, तो वो चीज़ें धंसती चली गई अंदर या उसको चेंज कर दिया गया आउटलुक उस चीज़ का, तो इसलिए वहाँ पे से उन्हें अभी तक 1000 ब्यूरियल्स मिले हैं। बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से गुम या लॉस्ट या फेड हो चुके हैं। एंड इतने डिस्टर्बेंसेस के बाद भी उस एरिया में द ब्यूरियल्स रिमेन इंटैक्ट। जो उन्हें ब्यूरियल्स मिले हैं वो उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं इतनी पुरानी एरा के बने हुए भी। ठीक है, तो इससे हमें क्या और नई एक्सकवेशन हम कर सकते हैं, उसका एक नया पोटेंशियल हो जाता है। अब जो एम है उसका, दैट इज़ द रीजन्स मेगालिथिक कल्चर के बारे में जानना एंड द स्टूडेंट्स को फील्ड वर्क से रिलेटेड ट्रेन करना। ठीक है, कि हम जब जा रहे हैं किसी भी रीजन में अलग अलग साइट्स होती हैं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ ये मैप दिया रखा है जिसमें हमने मेगालिथिक साइट्स के बारे में बताया है ऑफ द अर्ली टाइम्स। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एक है मेगालिथिक का है ब्रह्मगिरी। ओके, द राउंड जस्टिफाइज द मेगालिथिक पीरियड, तो एक ब्रह्मगिरी हो गया। ओके, ऐसे ही बहुत सारे साइट्स हैं। अब ये वाला एरिया भी हमारा मेगालिथिक हो गया। अब इसमें पैलोलिथिक और नियोलिथिक भी दे रखे हैं, तो आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मेगालिथ्स होते क्या है, मेगालिथ्स बेसिकली लार्ज स्टोन्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता था मॉन्यूमेंट या कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले मेगालिथ्स, मेगा बड़े बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेगा लार्ज स्टोन्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं फॉर द मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई ऐसे स्ट्रक्चर लाइक द बुरियल्स, बुरियल्स में भी यूज़ होते हैं स्टोन। ठीक है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द साउथ इंडियन कल्चर। अब हम जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करके पढ़ते हैं। सिमिलरली इट गोज विद दिस and the typically form burial site, ceremonial structure और markers for the ancient ritual। तो इससे क्या पता लगता है कि बुरियल साइट्स के लिए कैसे यूज़ होते थे, सेरेमोनी के लिए क्या यूज़ होता था, और एंशियंट जो रिचुअल्स थी वो कैसी होती थी, उस चीज़ के बारे में हमें मेगालिथ्स के थ्रू पता चलता है। अब इनमें कुछ कॉमन टाइप के हो जाते हैं लाइक द डॉलमेंस, द मेनहेयर्स, द स्टोन सर्कल्स, जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मिलते हैं। अब मेगालिथ्स हमें क्या दिखाते हैं, वो हमें बताते हैं अबाउट द सोशियो, अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, कि वहाँ पे क्या रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो होती थी, क्या कल्चर होता था, क्या सोसाइटी के नॉर्म्स होते थे जिसकी वजह से वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो ये सब चीज़ों को जस्टिफाई करता है हमारा मेगालिथ्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशंस के बारे में है अबाउट द इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन बेसिकली। तो ये हमारे IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, दे हैव विजिटेड इंडिया नाउ फॉर अ 4 डे विजिट है उनकी बेसिकली।
ठीक है, एंड उनका नाम क्या है, जल्दी बताइए, मोहम्मद मुइज़ू। तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, दे हैव अ स्टेट विजिट टू इंडिया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस इन मालदीव्स। क्यों हुई है इकोनॉमिक क्राइसिस? बिकॉज इंडिया का बेसिकली जो इंडिया से लोग जाते थे फॉर द वेकेशन या फिर वहाँ पर टूरिज्म जो था, जो इंडिया सपोर्ट करता था, ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट अमंग द बोथ द नेशंस, वो एकदम कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से, क्योंकि मालदीव्स बेसिकली पूरा टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, मतलब उनका जो इकोनॉमी है दैट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म सेक्टर। तो जब इंडिया बेसिकली, क्योंकि इंडिया पास पड़ता है, ठीक है, इंडिया के लोग ज़्यादा जाते थे मालदीव्स, एंड आफ्टर दैट उनका एकदम क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से द एरिया इज़ नॉट इन दैट थिंग नाउ, अब उसका इतना कोई पूछता नहीं है बेसिकली। तो टूरिज्म कम होने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, एंड अब डेप्थ रीपेमेंट्स करने के लिए उन पे बेसिकली फंड नहीं है। तो दे आर विद अ टॉक विद इंडिया, नरेंद्र मोदी के साथ ही इज़ इन टॉक टू सपोर्ट फॉर बेसिकली द करेंसी स्वैप्स एंड द डेप्थ रिलीफ, कि इंडिया उनका कैसे मदद कर सकती है फॉर द करेंसी को स्वैप करने में, बेसिकली ट्रेड रिलेटेड इट कैन बी, और टूरिज्म रिलेटेड एंड द डेप्थ रिलीफ। एंड इससे क्या पता लगता है कि अब हम इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है, और जो पहले इंडिया और मालदीव्स की टेंशन हो चुकी है, उसको हम क्या करेंगे, अब वापस से रिवाइटलाइज करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं मालदीव्स के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो मालदीव्स में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू द राइजिंग डेप्ट। उन्होंने डेप्ट लिए हुए हैं, उधार लिया हुआ है दूसरे नेशंस से, ठीक है, क्योंकि देखो टूरिज़्म से रिलेटेड थी। अब क्या हुआ, एक तो कोविड आया, कोविड के चक्कर में वहाँ पे जो टूरिज़्म था ऑलरेडी वो बहुत डिक्लाइन हो गया था, सब जगह बंद थी, कोई नहीं ट्रैवल कर रहा था, पहले वो हो गया। तो उसके चलते उन्होंने कुछ उधार या डेप्ट लिया होगा, जिसकी वजह से अब दे आर नॉट एबल टू पे दैट, ठीक है, एंड उनका जो जीडीपी रेशियो है दैट इज़ ऑल्सो इन डेप्थ ऑफ अबाउट 110%। तो उनकी बेसिकली इकनॉमी इज़ वेरी डिक्लाइनिंग, ग्रैपल हो रही है उनकी इकनॉमी, ड्यू टू विच दे हैव विजिटेड इंडिया। अब डेप्ट रीपेमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, मदद चाहिए, ठीक है, पैसे भी तो वापस देने पड़ेंगे ना, एंड इंक्लूडिंग अ 25 मिलियन पेमेंट ड्यू टू इस्लामिक बॉन्ड्स एंड टोटल ऑफ वन इन द ओवर नेक्स्ट 2 years। तो उन्होंने इस्लामिक बॉन्ड्स लिए होंगे, जिसकी उन्हें $25 मिलियन पेमेंट वापस करनी है, एंड $1.5 बिलियन भी उनकी रीपेमेंट बची है फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो उसकी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ डेप्ट ओवर देम, जिसके रीपेमेंट के लिए दे आर आस्किंग इंडिया फॉर सम हेल्प बेसिकली। और उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दैट हैव ऑल्सो डिक्लाइन और ड्विंडल टू अबाउट $440 मिलियन, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी पे स्ट्रेन आ गया और उनके जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब क्योंकि वो एक कोस्टल रीजन है, बेसिकली पूरा ओशन के पास सिचुएटेड है, ओशन में आधा सिचुएटेड है, उसकी वजह से कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट की वजह से थ्रेट पे है, चेंजेस आते हैं, ओशन में कुछ भी होगा और ऑब्वियसली टूरिज़्म इफ़ेक्ट हो जाता है उससे। उसके बाद अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी नीडेड है फॉर द सेम। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि उन पे फूड क्या आता है, बाहर से आता है, ठीक है, वहाँ पे इतना फूड प्रोडक्शन नहीं है, तो इम्पोर्ट्स के लिए उनको पैसे चाहिए। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी और रेजिलेंस के लिए भी उनको पैसे चाहिए। अब इंडिया कैसे उनकी हेल्प कर सकता है मालदीव्स की? सबसे पहला होगा स्वॉप अरेंजमेंट। करेंसी हम स्वॉप कैसे करेंगे? तो मालदीव्स ये एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि वो जो करेंसी स्वॉप है उस पर कुछ ईज़ लगा दें, उस पर थोड़ा कम बर्डन आ जाए, मतलब कि जो उनका रेट है उस पर थोड़ा इंडिया मैनेज कर ले, कम करके दे, जिससे कि उन पे इतना बर्डन ना आए। तो करेंसी स्वैप की पहली तो रिक्वेस्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वेस्ट है फॉर द डेप्ट रीपेमेंट्स एंड टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट पार्टनरशिप लाइक कोलैबोरेशन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।
कि इंडिया वहाँ पे जाके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद करे या फिर पैसे लगाए अपने, एंड ऑल्सो द सिक्योरिटी कॉपरेशन, बिकॉज वी हैव सीन दैट चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर दैट एरिया, या उसमें आसपास उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. सो फॉर दैट Maldives इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम इंडिया की कोलैबोरेशन करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करे, डेप्ट में थोड़ा उनको सपोर्ट कर दे, उसके बाद करेंसी के थ्रू कर दे, ये सब चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, लाइक उनके जो लोकल गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें थोड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करके. एंड ऑल्सो फ्रॉम द बायलैटरल ट्रेड, क्योंकि इंडिया ट्रेड करता है अपने ये नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, एंड सो विद मालदीव्स ऑल्सो. इससे क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एंड ऑल्सो द टूरिज़्म पे जो डिपेंडेंस है उनकी, वो भी इम्प्रूव हो पाएगी. ओके. अब जो ये रिसेंट मीटिंग हो रही है, इससे हम क्या एक इंसाइट निकाल सकते हैं हमारे फ्यूचर रिलेशन को लेके, कि सबसे पहला हमारे टाइज इम्प्रूव होंगे मालदीव्स के साथ. ठीक है, जो हमारे प्रीवियस इंडिया आउट कैंपेन था कि हम इंडियंस नहीं जाएंगे मालदीव्स, ठीक है, हमने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, उसको हम वापस कर लें, या उस चीज़ को हम स्टेबलाइज कर लें, वो हो जाएगा. उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसमें इंडिया हेल्प करे, उनकी बायलैटरल कोऑपरेशन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो. एंड इट ऑल्सो आउटलुक क्या होगा कि पॉजिटिव आउटलुक आएगा कि जो लीडर्स हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, नेशन, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे एक फ्रेंडली रिलेशन को भी जस्टिफाई करता है, जिससे कि और नेशंस भी, अगर हम मालदीव्स की हेल्प करते हैं तो और नेशंस भी इंडिया के तरफ एक उनका आउटलुक चेंज हो जाएगा कि हाँ, वी आर हेल्पिंग अदर नेशंस ऑल्सो. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है PYQ का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल. तो ये चैनल्स जो होती है हमारी 10 डिग्री, ऐसे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये दिखाते हैं कि कौन सा नेशन कहाँ से सेपरेट हो रहा है. तो जो 10 डिग्री चैनल है वो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है अलग अलग. ठीक है. नेक्स्ट, so our next topics talk about that scientists are working on a way to detect cancer with sound waves. ठीक है, तो जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, लाइक द हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड वेव्स और अदर थिंग्स, ठीक है, जो टेस्ट में भी यूज़ होते हैं कई बार, उनके थ्रू दे आर ट्राइंग टू फाइंड द वे जिससे कि हम कैंसर के डिटेक्शन में कुछ कर सकें. बिकॉज एज यू ऑल नो कि कैंसर डिटेक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. कई बार कैंसर डिटेक्ट मतलब 3rd स्टेज पे जाके होता है ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं. तो अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर हम ऐसे कुछ वेज फाइंड आउट कर सकें, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट पर्पज़. So, researchers at the University of Alberta have developed a ultrasound technique. ऐसा कुछ उन्होंने find out किया है that transforms cancerous tissue into blood circulating droplet. तो जो कैंसरस टिश्यूज़ होते हैं, जो वो सेल बन जाता है कैंसर के, उसको वो लोग ब्लड सर्कुलेटिंग ड्रॉपलेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक स्टडी या एक फाइंडिंग करी है ऑफ द अल्ट्रासाउंड टेक्निक. ठीक है, कि टिश्यू को वो ब्लड में कैसे या ब्लड ड्रॉपलेट्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, एंड पोटेंशियली रिप्लेसिंग इन्वेजिव बायोप्सीज, जो बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट वगैरह होते हैं फॉर द कैंसर पेशेंट्स, कीमोज होती है उनकी, उन चीज़ों को रिप्लेस करके हम ये सिंपल मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो अलाउज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर बायोमेकर्स इन ब्लड सैम्पल. इससे ब्लड सैम्पल्स के थ्रू, बायोमेकर्स के थ्रू जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं हम कैंसर को, जिससे कि लेस पेनफुल डायग्नोसिस हो सकता है. क्योंकि कैंसर डिटेक्ट करने के लिए भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, दैट आर वेरी पेनफुल, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है वो भी, तो उसके लिए भी ये टेक्निक इट कैन हेल्प इट आउट. अब हम और डिटेल में जानते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग साउंड फॉर कैंसर डिटेक्शन. तो ये अल्ट्रासाउंड जो टेक्नोलॉजी है, हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड वेव्स को दे विल यूज टू ब्रेक ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ कैंसरस टिश्यू फ्रॉम ट्यूमर्स.
जो ट्यूमर बन जाते हैं, जो कैंसर के सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म अ ट्यूमर, उसको वो लोग कैसे ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्टलेट्स या ड्रॉपलेट्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वो बायोमोलिक्यूल्स बन के हमारी ब्लड फ्लो में चले जाए, ब्लड स्ट्रीम में कैरी हो जाए। ठीक है, जब वो टिश्यू टूट जाएंगे, जब वो ट्यूमर टूट जाएगा और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करने लगेगा, तो वो जल्दी से निकल पाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोमेकर का हमने जो आइडेंटिफिकेशन बनाया, दीज ड्रॉपलेट्स क्या कहूँगी, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए जो हमारे अंदर होता है ब्लड के, एंड प्रोटीन्स दैट सर्व एज बायोमेकर्स फॉर कैंसर। बायोमार्कर्स क्या होते हैं, जो कैंसर के डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जो हमारे ब्लड में मिलते हैं वो, एंड अलाउइंग साइंटिस्ट टू डिटेक्ट स्पेसिफिक कैंसर टाइप्स एंड म्यूटेशन। इसकी वजह से हम कैंसर के टाइप और उसकी जो म्यूटेशन होती है कि वो फटाफट अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे, उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, दैट इज़ द बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद एनहांस, हम डिटेक्शन जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, एंड वी कैन यूज़ दिस टेक्निक सो दैट जो बायोमार्कर्स होते हैं हमारे ब्लड सैम्पल्स में, उसको हम इंक्रीज़ करके 100 टाइम्स तक अल्ट्रासाउंड टेक्निक के थ्रू हम उसको इंक्रीज़ करके जल्दी से उसको फाइंड आउट कर पाएँ एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ द अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से डिटेक्ट कर सकें हम उस चीज़ को। एंड ऑल्सो द नॉन इन्वेसिव अप्रोच, दैट इज़ लेस पेनफुल ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल बायोप्सीज, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते आ रहे हैं दैट इज़ वेरी पेनफुल, तो ये जो मेथड होगा ऑफ द अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन, इट इज़ लेस पेनफुल एंड डिस्कम्फर्ट भी नहीं करेगा ये पेशेंट को। ऑलरेडी दे ऑल आर गोइंग थ्रू अ लॉट, मेंटल फिजिकल प्रेशर बहुत होता है, तो ये हमारा एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हमारे जो मतलब जो साइंटिस्ट इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पहला है लो सेंसिटिविटी, बिकॉज डिटेक्टिंग सर्कुलेटिंग कैंसर इन ब्लड स्ट्रीम इज़ डिफिकल्ट ड्यू टू देयर लो नंबर्स। ठीक है, अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे पार्टिकल्स में एंड इट विल ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, उसके नंबर्स को काउंट करना या डिटेक्ट करना इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव मेथड फॉर द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है ड्रॉबैक। सेकेंड इज़ द कॉस्ट, तो इस सेल सर्च टेस्ट के लिए ये थोड़े एक्सपेंसिव होंगे अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, जिसकी वजह से जो इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, इसकी जो पहुंच होगी वो कम ही लोगों तक होगी। जब अगर टेस्ट महंगा होगा तो सब लोग तो नहीं करा पाएंगे, तो बेसिकली इसका जो एक्सेसिबिलिटी होगी लोगों के लिए वो कम हो जाएगी। एंड थर्ड इज़ द नीड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल्स, पहले इसको हमें बहुत ट्रायल करना पड़ेगा हमारी अलग अलग पॉपुलेशंस पे, जिससे कि हम एक फाइंड आउट एक इस टेक्निक को हम इफ़ेक्टिव डिक्लेयर कर सकें कि हाँ इट इज़ इंश्योरेबल कि ये सब कैंसर टाइप्स को डिटेक्ट कर सकता है अलग अलग डेमोग्राफी में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों पे अगर हम इसको टेस्ट करेंगे एंड इट बिकम्स राइट, देन ओनली वी कैन अप्लाई इट टू द मेडिकल फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स भी थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं। अब रिसेंट क्या एडवांसमेंट हुई है हमारे इस सेक्टर में ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द कैंसर थिंग, सबसे पहला हुआ है हमारा सिंगल सेल डिटेक्शन। तो इसमें हम सिंगल प्रोस्टेट कैंसर को फाइंड आउट जल्दी कर लेते हैं इन ब्लड सैम्पल्स यूजिंग द अल्ट्रासाउंड मेथड, यही मेथड यूज़ करके, जिससे कि ये थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अगर हम इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर दें तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा एंड एक्सेसिबल भी हो जाएगा। ठीक है, एंड ब्रॉडर एप्लीकेशन करना, अगर हम इसको ज़्यादा लोगों तक एप्लीकेट करेंगे, ज़्यादा टाइप्स ऑफ कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, तभी तो फ़ायदा है ना। तो ब्रॉडर एप्लीकेशन इन कैंसर भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक द ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेलोनोमा हो गया एंड सर्विकल कैंसर हो गया, तो ऐसे अलग अलग कैंसर का डिटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Okay, we have one pre-YQ question. Mission Indradhanush launched by the government of India pertains to
immunization of children and pregnant women, construction of smart cities across the country, India's own search for the Earth-like planets in outer space, and the educational policy. तो इंद्रधनुष होता है हमारे चिल्ड्रन के इम्यूनाइजेशन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जिसमें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द प्रेग्नेंट वुमेन, जिससे कि वो अपने हेल्थ पे टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनके उस पर काम कर सके एंड उसको इम्प्रूव कर सके. जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको भी ये कम करता है, उसमें हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी न्यूज़ एज द दो खबर कम्युनिटी. तो दो खबर कम्युनिटी कहाँ है, तो दो खबर कम्युनिटी क्यों न्यूज़ में है, फर्स्ट वी नीड टू गेन दैट. तो जो दो खबर कम्युनिटी है दैट इज़ अ पॉपुलेशन इन जॉर्जिया, जिसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है. लोग है, ग्रुप है एक ऐसा जिसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है एंड दे आर फेसिंग चैलेंजेस टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, टू प्रिजर्व देयर कल्चर. जो उनके इतने टाइम से कल्चर ट्रेडिशन चलते हुए आ रहे हैं उसको कैसे वो प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि पहली बात तो उनकी जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है और इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके कल्चर या उनके ट्रेडिशन को सस्टेन करके रखना. And the situation reflects the historical struggle for the identity and the non-violent principle in the changing society. कि कैसे हम non-violent तरीक़ों से अपनी आइडेंटिटी को, अपनी हिस्टोरिकल जो स्ट्रगल कोई भी कम्युनिटी फेस करता है उसको कैसे सस्टेन करके अपने फ्यूचर तक लेके जाएं. क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गई तो कैसे आगे की जनरेशन को पता चलेगा ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी, ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी. अब हम दो खबर कम्युनिटी के बारे में जानते हैं. तो ये कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जो कि रशिया से ओरिजिनेट हुई है 18th सेंचुरी में एंड दे आर नोन फॉर व्हाट देयर पैसिफिस्ट बिलीव्स एंड रिजेक्शन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स चर्च. तो दे डोंट बिलीव इन द चर्च सिस्टम, चर्च पे वो बिलीव नहीं करते, जो चर्च की प्रैक्टिसेस हैं उस पर बिलीव नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं एंड बहुत पैसिविस्ट हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो लोग अपने बिलीव्स को लेके. मूर्ति पूजा जैसे हम बोलते हैं उस पर बिलीव नहीं करते, जो हमारी अभी तक प्रथा चलती हुई आ रही है उसको रिजेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड दे बिलीव इन कम्युनल लिविंग, इकट्ठा होके साथ संगठित होके रहना, नॉन वायलेंस में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना. एंड दे बिलीव इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड, कि हम गॉड से कैसे डायरेक्टली कलेक्ट हो सकते हैं. वो किसी चर्च में जाके पूजा करना या अलग अलग प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते. एंड दे एक्सप्रेस अपना गॉड के लिए वो कैसे प्रेस करते हैं, अपना प्रेयर के थ्रू, हिम्स के थ्रू, अपने रिचुअल्स को फॉलो करके, अच्छे काम करके एंड कम्युनल लिविंग को फॉलो करके. अब जो उनके एंसेस्टर्स थे उनको बहुत पहले सामना करना पड़ा था बहुत चीज़ों का, लाइक द परसिक्यूशन, कि अगर वो मिलिट्री सर्विसेज को रिफ्यूज़ करते तो उनको मार दिया जाता था. दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उन्हें निकाल दिया जाता था. एंड ऑल्सो लीविंग देम टू टाइट नेट कम्युनिटीज़, उनको एक छोटे एरिया में, उनको टाइट नेट, कि वो एक दूसरे के अंदर ही रहे, मतलब वो कम्युनिटी किसी से बात ना कर पाए या किसी में मिक्सअप ना हो पाए, ऐसा सिचुएशन हो गई थी. फिर मिड 9th सेंचुरी में क्या हुआ कि 5,000 डोकोमर्स को इमिग्रेट किया गया टू कनाडा, जिससे कि जो ऑपरेशन उनके साथ होते, जो गलत चीज़ें उनके साथ हो रही थी उसको रोका जा सके. एंड दे कैन मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी, और वहाँ जाके वो अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को सस्टेन कर सके. और जो ये कम्युनिटी थी उनका बेसिकली काम क्या था, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, कलेक्टिव फार्मिंग करते थे और फूड प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा हाथ था सोवियत एरा में. ठीक है. अब जो अभी डोकोवार की पॉपुलेशन इन जॉर्जिया वो बस 100 लोगों तक सीमित हो गई है, 100 इंडिविजुअल्स तक वो गिर के आ चुकी है. एंड इसलिए उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने हेरिटेज को कैसे मेंटेन करें. एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ टॉपिक फॉर एवरी कम्युनिटी, खाली इस कम्युनिटी की बात नहीं है, सब कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को, अपनी लैंग्वेजेस को सस्टेन करके रख पा रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स को पता हो कि हाँ, अ कम्युनिटी लाइक दिस एग्जिस्टेड. ऐसे इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होता जा रहा है. एंड द यंगर जनरेशन फील कि हाँ, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो चीज़ें चलती भी आ रही हैं, उनके एंसेस्टर्स ने जो लाया है वो चीज़ रहे. Okay, next is the editorial analysis that the 3-tier war in West Asia with no end game. So the topic talks about the deadly Hamas attack on Israel, जो अभी हमने अक्टूबर 2023 में देखा है, सितंबर एंड से चीज़ें चल रही हैं. तो जो हमस अटैक
किया है ऑन इसराइल, उसके बारे में, पूरा वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स हो रही हैं उसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है। उससे पहले आपको ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि हमारी यूपीएससी मेंस में आ चुके हैं। प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड डू डिस्कस विद अस। ठीक है, तो पहली बात तो ये आर्टिकल क्या दिखाता है कि जो इज़राइल की मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो कैसा है, हम कैसे जो रीजन है उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे उसकी चीज़ों को रीशेप करेंगे हम, क्या इम्पैक्ट आ रहा है उन चीज़ों का, जो अटैक्स हो रहे हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जो पैलेस्टीन का इशू है सबसे ज़्यादा उस पर। एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो सजेस्ट विदाउट एड्रेसिंग द पैलेस्टीन इशू स्टेबिलिटी इज़ अनअटेनेबल, कि अगर हम पैलेस्टीन इशू को निगलेक्ट करते जाएंगे तो जो स्टेबिलिटी है उस रीजन की वो नहीं आ पाएगी कभी भी, एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे नेशन पे पड़ेगा, खाली वेस्ट एशिया की बात नहीं होगी, पूरे कंट्री पे या पूरे वर्ल्ड पे इसका कैसे तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द चेंजिंग रियलिटीज़ इन वेस्ट एशिया। जैसे कि इन अक्टूबर 2023 जो यूएस के एडवाइज़र थे जोक सुलिवन, उन्होंने क्या कमेंट किया था कि जो मिडिल ईस्ट है वो क्वाइटर दैन इट हैड बीन फॉर डिकेड्स, कि जो मिडिल ईस्ट रीजन है वो बहुत शांत है कुछ डिकेड से, नहीं अभी कुछ शांत है जितना वो पहले डिकेड्स में नहीं था, जबकि इतने वहाँ पे टेंशन्स हैं उस रीजन में, उसके बाद भी मिडिल ईस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं था इतना। उसी के कुछ दिन बाद हमस ने क्या किया, दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द इज़राइल, हमस ने क्या कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी इसराइल पे, जिसकी वजह से सीवियर कैजुअलिटीज़ हो गई, होस्टेजेस हो गए और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 2023 में ये सब कुछ हुआ था, ये इज़राइल वाला अटैक हुआ था। उसके 1 साल बाद अब जो रीजन है वो और डेडलियर बन गया है और उसकी सिचुएशन वर्सन अप हो गई है, वहाँ मतलब लिविंग कंडीशंस पॉसिबल ही नहीं है अब, और जो वहाँ पे स्टेबिलिटी थी वो तो बची ही नहीं है, कोई अब सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसे आएगी। ठीक है, अब अमेरिकन्स का क्या पर्सपेक्टिव है, तो रीसेंट जो उनके डेवलपमेंट्स हैं लाइक द अब्राहम रिकॉर्ड्स ऑफ 2020, उन्होंने सिग्नल किया है, उन्होंने बताया है कि एक नया एरा आएगा फॉर द अरब इज़राइल पार्टनरशिप एंड द सऊदी अरेबिया मूव्स टू नॉर्मलाइज टाइज विद इज़राइल। तो अरब इज़राइल की पार्टनरशिप का एक न्यू एरा इमर्ज होगा, ऐसे वो बोलते हैं, अमेरिकन का ये पर्सपेक्टिव है थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड्स। एंड दे ऑल्सो से कि जो सऊदी अरेबिया है वो जो टाइज़ है बिटवीन देम एंड द इज़राइल उसको इम्प्रूव, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ करेगा। ठीक है, एंड एडिशनली द अनाउंसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया टू यूरोप वाया द मिडिल ईस्ट ऑल्सो हैव बॉर्डर द परसेप्शन ऑफ द प्रोग्रेस। इसको हम और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो इंडिया ने अभी इंडिया टू यूरोप का जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का लिंकेज बना है उसमें मिडिल ईस्ट बीच में आता है, इससे क्या होगा, एक परसेप्शन हम ये लगा पा रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू प्रोग्रेस तो होगी ही होगी, एंड जो हमारे एक चेंजिंग कंडीशंस हो रही हैं ऑफ वॉर एंड अदर थिंग्स ये भी इम्प्रूव हो पाएगी। बट पैलेस्टीन इशू को हम अगर ओवरलुक करते रहेंगे तो ये चीज़ों पे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हम स्टेबिलिटी पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब इज़राइल का जो करंट वॉर है दैट इज़ द ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन, तो इज़राइल क्या है अब 3 टायर वॉर में इंगेज हो गई है, जिसमें वो चाहती है कि वो हमस को डिस्ट्रॉय कर दे, हिज़्बुल्लाह को पीछे धकेल दे और ईरान की जो पोजीशन है उसको वीक कर दे। तो ईरान ये ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन चला रहे हैं, मतलब ऑक्टोपस क्या होता है, अलग उसके इतने सारे हाथ होते हैं, तो एक हाथ वो यहाँ मारने की सोच रहा है, एक हाथ से वो हमस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, एक हाथ से वो ईरान को वीक करने का सोच रहा है, और एक हाथ से वो हिज़्बुल्लाह की जो सिचुएशन है उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो टायर 1 में क्या है, द वॉर इन द गाज़ा जो कि हुई है, जिसमें हमस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है, एंड द रिलीज़ ऑफ होस्टेजेस उसके लिए है टायर 1। ठीक है, उसमें जो उनके गोल्स हैं दे हैव बीन अनमेट, 12 महीने के वॉर के बाद भी कुछ भी गोल्स हैं वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, एंड ओवर 41,000 पैलेस्टीनियंस भी मारे जा चुके हैं, और जो पूरी पॉपुलेशन है गाज़ा की उसको डिस्प्लेस करा जाता है, उन्हें कहीं और भेजा जा चुका है। तो 12 महीने की फ़ाइट, 12 महीने के चीज़ों के बाद भी जो गोल्स हैं वो भी अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। सेकंड टायर में आ जाता है नदर्न इज़राइल, हिज़्बुल्लाह जो है वो अभी भी अटैक्स कर रहा है डिस्पाइट इज़राइल्स रिटेलिएशन, मतलब दोनों एक दूसरे को
रिटेलिएट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एंड द इजरायली एफर्ट्स टू क्रिएट अ स्टेबल बॉर्डर। ठीक है, इजरायली चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबल बॉर्डर हो जाए। एंड द थर्ड टायर इज़ द रीजनल लेवल, जिसमें कि इजराइल क्या कर रहा है, ईरान की सिचुएशन को, ईरान को वीक करने की सोच रहा है थ्रू मिलिट्री एक्शंस। मिलिट्री उन पे दबाव बना के, अटैक्स करके, उनकी मिलिट्री को वीकन करके ईरान पे वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे दिखता है, थ्रू सपोर्ट ऑफ मिलिटियाज लाइक हमास, हजबुल्ला, इनके थ्रू दिखता है। एंड इजराइल क्या कर रहा है, उन पर डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है बाय द हेड ऑफ द ऑक्टोपस, मतलब ईरान इटसेल्फ, मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहा है इन एरियाज़ पे, जिससे कि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्गर कर सके। अब अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो, और उसके जो चीज़ें हो रही हैं उसके सराउंडिंग में उसकी बात करें तो, इज़राइल में रीसेंट किलिंग हो रही है, हिजबुल्ला के रीसेंट हसन नसरल्ला को मारा जा चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे एक सेटबैक हो गया है। अब इससे ये तो नहीं पता लगेगा कि एलिमिनेट कर देंगे मिलिट्रियाज को, लाइक मतलब एक आदमी को मारने से हम पूरी कम्युनिटी में तो ये सोच नहीं सकते ना कि सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। हिजबुल्ला अभी भी अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं और इजराइल को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द लेबनान रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, हिजबुल्ला को वीक करने के लिए, उसकी लीडरशिप को वीक करने के लिए इजराइल क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ें अपनाता जा रहा है, कुछ अपने तरीके अपना रहा है। जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ने दिखाया है कि जो मिलिटियाज हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यू टू ग्रो डिस्पाइट द लीडरशिप लॉसेस। उनके लीडर के मारे जाने के बावजूद भी जो मिलिटेंट्स हैं उनके नंबर्स में कुछ गिरावट नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स से ईरान फैक्टर। जो इजराइल है उसने ये शो किया है दैट दे कैन कैरी आउट द अटैक्स ईरान के अंदर घुस के भी। ठीक है, ये शो करता है। एंड इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर सच स्ट्राइक्स विद डिटर ईरान फ्रॉम इट्स रीजनल ऑब्जेक्टिव्स और सपोर्ट अलाइड मिलिटियाज। इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स करी जा रही हैं इससे ईरान गिरेगा, झुक जाएगा, या फिर जो उनके रीजनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो राइज होंगे या कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। फिर जो शूटिंग मैच है, मतलब बिटवीन ईरान एंड इजराइल, जो एक दूसरे को रिटेलिएट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा रीजन में और गिरावट आती जाएगी। जो उनके पोटेंशियल है चीज़ें ठीक होने का वो नहीं हो पाएगी, और जो उनके न्यूक्लियर पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या ऑल्ट्रेशन होगी, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। एंड Israel lacks a clear strategy for Iran, especially without the regime change in Tehran region. ठीक है, जब तक वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं होता तब तक उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। उसके बाद क्या उनके क्या एस्केलेशन पॉइंट हो जाता है, किन चीज़ों की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पहली बात तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट कैन लीड टू वॉर को एक्सपैंड करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इजराइल के आउटकम्स अभी तक नहीं आ रहे, जो हमने टायर सिस्टम पढ़ा अभी तक जो टायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। एंड जो वेस्ट एशिया है, जैसे कि सीज फायर इन गाजा इज एसेंशियल अलॉन्ग विद एड्रेसिंग द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। गाजा एरिया में क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, जो सीज फायर हो गया वगैरह। इजराइल जो है अभी क्या फोकस कर रहा है, ऑन रीशेपिंग द रीजन टू इट एडवांटेज, कैसे वो अपने एडवांटेज के लिए उस रीजन को बदल सकता है, रीशेप कर सकता है, रादर दैन पीस के लिए। ठीक है, मतलब पीस का ज़रिया ना अपनाते हुए क्या उसमें चेंजेस ला के वो इजराइल अपने एडवांटेज के लिए क्या कर सकता है, कैसे रीजन को इम्पोर्टेंट बना सकता है और अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है, उस पर फोकस कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम वेस्ट एशिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, एंड वो फेल होता जा रहा है पीस और स्टेबिलिटी के उस पे रास्ते पे चलते हुए। ठीक है, यूएस ने भी बहुत ट्राई कर लिया, फिर वो भी बैकआउट कर गए। ठीक है, तो अब उन्हीं की कंट्री को देखना पड़ेगा कि कैसे वो स्टेबिलिटी या पीस के वहाँ तक पहुँचेंगे। एंड इजराइल एफर्ट्स में फेस अ सिमिलर फेट इफ़ इट कंटिन्यूज टू डिसरिगार्ड द सेंट्रल इशू। अगर इजराइल अभी भी अपने इश्यूज़ को नहीं सॉल्व करेगा, उसका जो पतन है, उसका जो फेट है वो
बहुत जल्दी होगा। एंड इट फोकसेस ओनली ऑन द मिलिट्री एस्केलेशन, वो सिर्फ अपनी मिलिट्री को बढ़ाने में, मिलिट्री पावर को इम्प्रूव करने में लगा है, बाकी जो कंडीशंस हैं वहाँ पे उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर यही चलता गया तो वहाँ की सिचुएशन वर्सन अप हो जाएगी। आई थिंक वहाँ पे फिर लोगों का ही आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, that's all for today. I hope we have discussed all the important topics as of now, and please do like, share and subscribe our channel for more such videos. रोज़ आपके लिए ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोस आती रहेंगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर इस टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जिससे कि हम इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, एंड ये जो MCQ क्वेश्चंस थे एंड जो ये मेंस के क्वेश्चंस भी थे, इसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके। और कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें और जिसको डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। फॉर द डेली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स हमारे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड आई होप वील मीट सून। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो जो कुछ भी आपको लगता है इम्पॉर्टेंट हो और यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।